Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, जहाँ पे आज भी हम OCM के चैप्टर को और स्पेसिफिकली बिजनेस सर्विसेज को थोड़े आगे लेके जाएंगे। अभी ये चैप्टर की शुरुआत तो हमने काफ़ी समय पहले कर ली है, काफ़ी लेक्चर्स पहले करनी है। इसका इम्पोर्टेंस, महत्वपूर्णता एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके अंदर कौन से सर्विसेज हम कवर अप करने वाले हैं, ये सारा तामझाम हो चुका है। बैंकिंग हमने पूरी तरह से कवर अप कर लिया है, इंश्योरेंस भी हमने कर लिया है, सॉरी फॉर दैट, और ट्रांसपोर्ट की चर्चा पिछली बार हमने स्टार्ट की थी। ओके, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, देयर आर वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, road transport being one, and something which has a maximum what you call possibility कि भाई various countries के अंदर even though महासागर से हमारा ये जो दुनिया है maximum covered है, but जितनी भी धरती है उसमें जितने रास्ते बनाए गए हैं वो डेफिनेटली महासागर की किलोमीटर से तो ज़्यादा ही होगा। ओके, तो रोड ट्रांसपोर्ट इज़ व्हाट वी कवर्ड अप लास्ट टाइम। Now, besides road transport, what is the next that we are going to discuss today? Well, आज हम रेल ट्रांसपोर्ट जो होता है उसके ऊपर चर्चा करेंगी। There are certain disadvantages of road transport. एक था pollution, रेल ट्रांसपोर्ट ये नहीं करता। एक था limited carrying capacity, रेल ट्रांसपोर्ट के बारे में ये काफ़ी अच्छी बात है कि उसका एक कोच जो होता है उसी के अंदर आराम से 100 या 100+ पीपल सोकर ट्रैवल कर सकते हैं, और बड़े बड़े ट्रेन्स के अंदर ऐसे जो कोचेस होते हैं वही 12 से 15 तक होते हैं। तो जो नंबर ऑफ पीपल या गुड्स भी हो सकता है। ओके, इनफैक्ट अगर आप कभी मालगाड़ी देखो, गुड्स का जो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है, अगर आप उसके शुरुआत के इंजन से रुको और उसको जाता हुआ देखते रहो, 5 मिनट 10 मिनट बीत जाएगी, वो गाड़ी तो भी चलती जाएगी। एक तो उसका स्पीड थोड़ा कम होता है क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सामान रखा गया है, बट उसके अंदर जो कोचेज़ रहते हैं वो इतने ज़्यादा रहते हैं क्योंकि पूरी कोशिश की जाती है कि एक यात्रा दौरान मैक्सिमम सामान एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जा सके, ताकि खर्चे जो ट्रांसपोर्टेशन के होते हैं वो जितने कम हो सके वो हो सके। सो रेल ट्रांसपोर्ट का, रेलवेज का इस्तेमाल करके जब आप लोगों को और गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हो, वो रेल ट्रांसपोर्ट होता है। अच्छा, अभी हमारे भारत देश में
मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, अगेन मैंने पिछली बार कहा कि रोडवेज की एक मिनिस्ट्री है, वैसे ही रेलवेज की एक मिनिस्ट्री है, उनके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट, और वो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जहाँ तक भारत देश के अंदर रेल की विकास का क्वेश्चन या प्रश्न आता है। बराबर, हर एक स्टेट के अंदर, हर स्टेट के बीच में जो कनेक्टिविटी होती है, क्योंकि रेल जहाँ तक लॉन्ग डिस्टेंसेस की बात आती है, एक आप जब भी अपने गांव गए हो, आप में से जितने भी लोग अभी ये लेक्चर अभी या फ्यूचर में देखने वाले हैं, ये मे बी 5 या 10% लोग कहे कि सर मैं ना हवाई अड्डे पर गई थी, मैंने एयरवेज का इस्तेमाल किया, प्लेन का इस्तेमाल किया। 90% के आपके लोग मुझसे ये जवाब देंगे सर हमने ट्रेन पकड़ा और हमारे गांव तक हम पहुंच गए। ऐसा क्यों है? क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन का एक अच्छी बात है, सस्ता होना ट्रेन का एक अच्छी बात है, और उसके अंदर जो सेफ्टी होती है वो एक बस की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है। तो एक्सीडेंट्स जो रेलवेज का है वो रेट जो है काफ़ी हद तक कम होता है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जिनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है भारत देश के अंदर रेलवे की विकास के लिए, उन्होंने ताकि रेल ट्रांसपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा आगे जा सके, रेलवेज को अलग अलग या ट्रेन्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है। पैसेंजर्स ट्रेन्स अलग होते हैं, फ्रेट गुड्स या फ्रेट ट्रेन्स जो माल उठाते हैं, गुड्स या प्रोडक्ट्स की डिलीवरी करते हैं, ये अलग होते हैं। अभी अगर आप कभी ट्रेन में यात्रा करो तो ये बहुत पॉसिबल है कि आप अपने शहर के लोकल ट्रेन्स को और दूसरे स्टेट से आने वाले ट्रेन्स आमने सामने देखो, जिसके वजह से जो इंटरसिटी ट्रेन्स होते हैं उसका जो स्पीड है कम हो जाता है। तो बहुत जल्द कुछ सालों के अंदर ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का प्रेजेंट सरकार के साथ में प्लान है कि एक ऐसा कॉरिडोर बनाया जाए, एक ऐसे कुछ ऐसे ट्रैक्स बनाए जाए जहाँ पर सिर्फ मालगाड़ियाँ चले, कोई लोकल ट्रेन चलने वाला नहीं है, और जहाँ पे पैसेंजर ट्रेन भी चलने वाले नहीं है। तो जब वो ट्रैक उसी के लिए बनाया जाता है, उसमें उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, और जब स्पीड बढ़ जाती है तो डिलीवरी का टाइम कम हो जाता है, और उसके वजह से आगे काफ़ी फ़ायदे रहते हैं। अच्छा, काफ़ी ऐसे ट्रेन हैं जो लग्जरी वाले ट्रेन हैं, जो अगर आपको भारत देश को देखना है, जो खास करके जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं वो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप तेज़ी की बात करो, राजधानी एक्सप्रेस कुछ बनाए गए हैं जो दिल्ली की दिशा में वेरियस सिटीज़ से दौड़ाए जाते हैं। डुरंटो एक्सप्रेस एक ऐसी ट्रेन बनाई गई है जो स्टार्ट टू एंड है, स्टार्ट से शुरू होती है, बीच में रुकती नहीं है, सीधे जाके अपने डेस्टिनेशन पे, इसके वजह से ये काफ़ी तेज़ है। शताब्दी एक्सप्रेस बनाए गए हैं, इंटरसिटी करके ट्रेन्स अवेलेबल है। हाल ही में वंदे भारत जो काफ़ी इंटरनली उसका अरेंजमेंट इम्प्रूव किया गया है ताकि जो पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं उनकी कंफर्ट का ख्याल रखा जा सके। तो ये सारे हॉलीडे स्पेशल ट्रेन्स के इसमें आते हैं, और काफ़ी लग्जरी ट्रेन्स भी होते हैं जहाँ पर आप जब उस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, जहाँ पर आप जा रहे हो, उसका एक्साइटमेंट और उस ट्रेन की जर्नी का एक्साइटमेंट, क्योंकि उसमें जो सुविधाएं आपको दी जाती है वो बहुत ऊंचे दर्जे की, एक 5 स्टार जो होटल होता है ना उस दर्जे की दिया जाता है। ये खास करके जो टूरिज़्म है उसको बढ़ावा देने के लिए किया गया है। मैं कुछ चित्र आपको जल्द से दिखा देता हूँ। ये हमारे नॉर्मली पैसेंजर ट्रेन है। तो अगर आप आपके गांव जा रहे हो या एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो सकता है कि इसमें से राजधानी हो सकता है, कोई भी इंटरसिटी की ट्रेन हो सकती है, मेरे पीछे वंदे भारत की ट्रेन है, ऊपर डुरंटो है, इंटरसिटी, ये सारी ट्रेन्स का आप इस्तेमाल करते हो ट्रैवल करने के लिए। इसके अलावा जो लग्जरी ट्रेन्स थे, जैसे मैंने बोला कि सर ये तो होटल का कोई कमरा दिखता है,
सही बात है, बट जो लग्जरी ट्रेन्स की कैटेगरी है ये उसके अंदर आती है। जो मेरे पीछे है वो डेक्कन ओडिसी करके कहलाई जाती है। इसके पीछे रामायणा जो एक्सप्रेस है उसको चलाया जाता है। मेरे ऊपर जो लिखा गया है महाराजा एक्सप्रेस, तो आई रिपीट, इसमें आप कभी ट्रैवल करो तो एक राजा से कम का एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला नहीं है। अगर आपने कभी इन ट्रेन्स के बारे में जाना नहीं है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा इस लेक्चर के माध्यम से कि कुछ YouTube वीडियोस आप देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है आप एक शहर के बच्चे हो, अ सिटी किड, बराबर, तो आपने सिटी के बाहर इतना ट्रैवल, क्योंकि मम्मी डैडी को टाइम नहीं मिल पाता, ओके, बट येस, एडवेंचर की जो ज़िंदगी होती है, ट्रैवल की जो ज़िंदगी होती है, उसका एक्सपीरियंस ही कुछ अलग होता है। एंड ट्रैवल टू वेरियस प्लेसेस, visiting various places, visiting, interacting with many people, से जो एक्सपीरियंस, अनुभव आपको मिलता है वो और दूसरी भी कोई चीज़ से मिल नहीं सकता है। सो वो सारे थे पैसेंजर ट्रेन्स। मेरे पीछे है ये गुड्स ट्रेन्स। तो अगर आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो, इसकी इतनी लंबी लाइन है, ओके, क्योंकि एक मालगाड़ी के अंदर पूरी कोशिश की जाती है कि जितना ज़्यादा सामान ठूसा जा सके उतना ज़्यादा सामान उसके अंदर भरा जाता है। ओके, तो रेल ट्रांसपोर्ट के अच्छी बातें क्या है, इसके बाद में हम इसके बुरी बातें, मतलब डिसएडवांटेजेस पे आ जाएंगे। देखिए, लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए कश्मीर टू कन्याकुमारी, अगर आप एक मोटरसाइकिल एंथुजियास्ट हो, बराबर, या गाड़ी, आपके पास टाइम है, आप पेट्रोल का खर्चा कर सकते हो, हाँ, तो आप डेफिनेटली रोडवेज यूज़ कर सकते हो। बट जो टाइम आप लोगे वो मे बी 10 गुना ज़्यादा होगा, क्योंकि स्पीड कम होती है, क्योंकि आपको दाएं बाएं ऊपर नीचे घूम घूम के जाना है। बट रेलवेज काफ़ी हद तक स्ट्रेट ही होता है, तो इसके लिए लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए, ओके, थकान भी कम होती है। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, जो सीनियर हमारे हैं, अगर आप उनको कहो कि गांव जाना है, गाड़ी में जाना है, मतलब रोड ट्रांसपोर्ट, उनके लिए काफ़ी मुश्किल की बात है कि वो पोजीशन में बैठना, उस सीट पर करीबन 20-25 घंटे बैठना। बट हाँ, रेल में सोकर आप अगर एसी के कंपार्टमेंट में जाओ, आराम से पहुंच जाओगे। फिर हैवी और बल्कि सामान नॉर्मली रेलवे से ही पहुंचाया जाता है। तो हमारे जो डिफेंस फोर्सेस हैं, उनके जो भी व्हीकल्स है, उसका जो उत्पादन है वो ऐसा नहीं है कि बॉर्डर पे होता है। वो तो जो कंपनी या जो मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है किसी शहर में रहता रहेगा, तो वो जो बड़े बड़े टैंकर्स या गाड़ियाँ आती है या हेलीकॉप्टर्स आते हैं, वो जाएंगे कैसे? वेल, वो वहाँ तक रेलवेज़ के द्वारा या रेलवेज़ की मदद से पहुँचाए जाते हैं। फिर फास्टर मोड, जी पक्का, क्योंकि तेज़ी से काफ़ी चलता है, और क्योंकि जैसे मैंने बोला ये साउथ कॉरिडोर, नॉर्थ कॉरिडोर के हमारी सरकार है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ ने जो योजना बनाई है कि हम ऐसी एक कॉरिडोर बनाएंगे, ट्रैक्स, जहाँ पर सिर्फ हमारी ये ट्रेन्स चलेंगे, ओके, यहाँ पे शहर के कोई ट्रेन्स नहीं आ पाएगी, जिसके वजह से तेज़ी, जैसे ही स्पीड फास्ट हो जाती है, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कोई भी शहर के अंदर अगर ट्रैफिक जाम काफ़ी होता है, मतलब गाड़ी बम्पर टू बम्पर चली रुकी, उसके वजह से गाड़ी की जो लाइफ है वो भी कम होती है, ट्रांसपोर्टेशन का जो समय है वो भी बढ़ जाता है, उसके वजह से डिले और काफ़ी चीज़ें उस पर निर्भर करती है। अगर बिना कोई रोक टोक के अगर तेज़ी से गाड़ी चलाया जा सकता है तो ऑटोमेटिकली उसके बाद वो एक अच्छी बात है, और बाकी की चीज़ों पर जो असर होगा डिलीवरी के टाइम पर, डिलीवरी टू द कस्टमर के टाइम पर, उसके वजह से वो जो बनाता है वो सारी चीज़ें तेज़ हो जाएगी। देन लेस अफेक्टेड बाय वेदर कंडीशंस, विच इज़ वेरी वेरी ट्रू, कि ये बहुत रेयर होता है कि जो रेलवे ट्रैक्स है वो कम्प्लीटली फ्लडेड हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि होते नहीं है, बट आई रिपीट, रोडवेज़ की तुलना में ये थोड़े कम अफेक्टेड होते हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जी डेफिनेटली, कि रोड ट्रांसपोर्ट की तुलना में ये सेफ ज़रूर है। अभी ये तो हुए रेल ट्रांसपोर्ट के एडवांटेजेस।
डिसएडवांटेजेस पे एक नज़र हम मार लेते हैं। रिलेटिवली कॉस्टली, जी, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो अच्छी बात है, बट अगर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए रेल ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल किया जाता है तो वो काफ़ी महंगा हो जाता है। इसके अलावा रिमोट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जो छोटे छोटे गांव खेड़े होते हैं ना, वहाँ तक रेलवेज पहुँच नहीं पाई है। इनफैक्ट आप भी जानते रहेंगे, मैंने काफ़ी बच्चों को ये काफ़ी बार जब पिछले 20 सालों से मैं पढ़ा रहा था पूछा, आप आपके गांव कैसे जाते हो? सर हम यहाँ से वहाँ जाते हैं रेल में। सर उसके बाद में सर हमारा गांव तो 6 घंटा अंदर है, हमको फिर से कोई ट्रक में कोई बस में बैठ के जाना पड़ता है। तो हर कोने कोने तक ये अवेलेबल नहीं है। हैवी लॉसेस ऑफ लाइफ, कभी कभार दुर्घटनाएं होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, बट एक गाड़ी या बस के अंदर हो सकता है 20 या 25 लोग हैं, बट जब एक रेलवे की बात होती है उसके अंदर आराम से 1000 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो उतने की जो जान है वो धोखे में ज़रूर आ जाती है। इसके बगैर टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, काफ़ी रेलवेज का एक टाइम होता है, क्योंकि ट्रैक 2 या 3 ही होते हैं, काफ़ी हद तक काफ़ी जगहों पर 2 ही ट्रैक होते हैं या एक सिंगल ट्रैक होता है, या तो एक ट्रेन जा सकती है या तो एक ट्रेन आ सकती है। ये सारा कुछ टाइमिंग पे डिपेंड करता है। तो एक ट्रेन जो स्पीड से जाती है वो ये डिसाइड करती है कि उसके पीछे का ट्रेन कितनी स्पीड से और कब निकलेगी, उसके नेक्स्ट वाला ट्रेन कब निकलेगी, कितनी स्पीड से वो ट्रैवल कर सकती है। तो आप ट्रेन्स का टाइम टेबल ज़्यादा फेरबदल नहीं कर सकते हो, गाड़ी का कर सकते हो। जब मैं कोई यूट्यूब वीडियो देखता हूँ और कोई बाइकर ये बोलता है, अरे मुझे मुंबई से बेंगलोर जाना था, सोचा था सुबह 6 बजे जाऊँगा पर मैं सो गया, मैं एडिट कर रहा था, करते मेहनत करते, तो मैं दोपहर के 1 बजे निकल गया, चलता है, कोई बात नहीं है, आप ऐसा कर सकते हो। लास्ट में डोर टू डोर सर्विस रेल ट्रांसपोर्ट नहीं देता, ये सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट की एक बेस्ट बात होती है। तो ये तो हुआ रेल ट्रांसपोर्ट, उसके ऊपर चर्चा है क्या, हमारे देश में अभी सिचुएशन क्या है और अच्छी और बुरी बातें। आज के लिए इस मुद्दे को इतना तक ही रखते हैं। हमारे पुराने मित्र हो शेयरिंग करते रहिए, हमारे नए मित्र हो तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबाइए। आपके कीमती समय के लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। जल्दी मिलूँगा इसके कंटिन्यूएशन के साथ में, तब तक आप बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।